Hello everyone, welcome back. So in this particular video, we are going to see about the different kind of matter on the basis of physical properties. So in the last video, we have discussed about the states of matter, classification of matter on the basis of physical and chemical properties, and the characteristics of particle that or say the characteristic which particle exhibit, that we have studied. Okay, so that particular concept is going to apply here. So let us start. So in this video, it's all based upon, now in this entire chapter is based upon interparticle space and interparticle force. So let me explain you briefly about interparticle space and interparticle force. So let us suppose this is a particle A, not A, let us just assume that this is a particle. This is another particle and this one is another particle. Okay, this looks like a face, but imagine it. So the distance between this particle to this particle is known as interparticle space. Interparticle space. And the force by which they are attracted is known as interparticle force. जिस फोर्स से दोनों अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, that is called interparticle force, and the space between them is known as interparticle space. So this is a basic concept. This is gonna apply in every situation in this chapter. So you should remember this. Okay. So let us start with the solids, liquids, and gases. So on the basis of physical properties, the matter is classified into solid, liquid, and gaseous. So let us write solid, liquid, and here gases. Okay, so the solid particles are like this. उनका arrangement अभी हम लोग बना रहे हैं. Okay, so this is their arrangement in liquids. Okay, and in gaseous, and this is the molecule of gas. Now what you can observe here, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेस बहुत कम है. ठीक है, इधर भी मैं बना देता हूँ. ये देखो, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि स्पेस काफी कम है दो पार्टिकल्स के बीच में. तो यहाँ पर एक न्यूटन का अगर ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो उसमें एक लॉ है that F of G is equal to, या फिर ऐसे इसको लिख दो, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय G_m_m by r स्क्वायर. सिंपल सा रिलेशन, जहाँ पे हम जैसे हम देखते हैं कहीं पर भी that whenever the number is in the denominator it is inversely proportional to the given quantity. ठीक है, तो यहाँ से न्यूटन ने बोला था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. राइट, तो यहाँ से क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है उसका अगर हमने स्क्वायर किया तो जरूर ना जरूर ये फोर्स जो है हमारा कम हो गया. तो मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं फोर्स ये डिक्रीज होता है. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. अगर एक मैग्नेट को मैं यहाँ पे रख दूं, अगर एक मैग्नेट यहाँ रख दे और एक मैग्नेट अगर पीछे रखता है तो मैग्नेट वाला यहाँ वाला जल्दी अट्रैक्ट होगा. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. और जो दूर होगा वो थोड़ा कम अट्रैक्ट होगा. इसको बहुत सिंपल से समझ सकते हैं. अगर इफ यू आर स्टैंडिंग in front of me in just 2 meter apart, I can slap you very easily. Okay, but if you are standing 100 meter apart, I can't slap you. Same stand with the force that if you are nearer to it, it will pull you, or if you are farther to it, it will repulse you. Okay, it's a very simple illustration. So this is force is inversely proportional to 1/r square. Now apply this rule here. You can see that space is less. दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस काफी कम है. तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, फोर्स हमारा ज्यादा हो जाएगा. और अगर तो ये एरो 1 इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए. अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पार्टिकल्स का स्पेस जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे अगर पार्टिकल्स का स्पेस इंक्रीज है तो यहाँ पे जो है फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन के साथ. गैसेस में बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पेस है. देखो इन दो पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा स्पेस है. तो
यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा कम। तो यहाँ से क्या समझ आता है कि सॉलिड में पार्टिकल का जो फोर्स होता है बहुत ही ज्यादा होता है, यहाँ पे जो होता है वो बहुत ही कम, मतलब मॉडरेट होता है, और यहाँ पे जो होता है दैट इज वेरी लेस. So that is the reason why you can't put your hand inside a table, okay? And in the case of water, you can easily, just take out your hand and just you can put it in dip in water, and you can actually displace that water. But in case of solid, it is not possible. If I am just I'm just applying force to it, would I am able to just dip my hand on this solid particle? No, it's not possible, because the intermolecular force of attraction is the main agent here. जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैटर उतना ज्यादा रिजिड. तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे भी कम गैसेस में, उससे भी कम प्लाज्मा में, जो कि लास्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, तो मेन चीज क्या है यहाँ पे सॉलिड. अब हम लोग थोड़ा इसको डिफाइन कर देते हैं जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग डेंसिटी, मास, ये सब सारी चीजें देखेंगे. पहली चीज, लेस एंटर्ड पार्टिकल स्पेस. यहाँ पे क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस काफी कम है. मोर इंटर पार्टिकल फोर्स. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अभी हम लोगों ने. यहाँ पे मॉडरेट इंटर पार्टिकल फोर्स, सॉरी मॉडरेट इंटर पार्टिकल स्पेस, और यहाँ पे भी मॉडरेट इंटर पार्टिकल force. Okay, in case of gases it's just opposite. More inter particle space, यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस काफी ज्यादा है. लेस इज द फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, कम होगा. लेस इंटर पार्टिकल फोर्स. ठीक है, तो बस ये बेसिक सा डेटा है. ठीक है, यहाँ पे सॉलिड्स का जो है देख रहे हैं कि काफी डेंस है मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बहुत ही कम और यहाँ पे बहुत ज्यादा. तो अभी हम लोगों ने न्यूटन का लॉ लगा के सिंपल से समझ लिया. इसको बहुत ना मतलब व्हेन आई वाज इन क्लास 9 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एक्सपेरिमेंटली इट्स वेरी प्रूवन दैट इफ आई एम गोइंग टू हिट दिस वॉल with my hand, it is not gonna break. But if I can hit a water with my hand, easily I can displace it. But due to the more interparticle space, less interparticle space, I am not able to do so. Or say more interparticle force is not allowing me to just push it and to break it. Okay. Now it comes to the density of the liquid, how its volume, the properties. बस properties देखेंगे solids का, liquids का, gaseous का. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं. ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. सबसे पहले it has fixed shape. यहाँ पे solid का shape fixed होता है, यहाँ पे does not have fixed shape. सबके बारी का रीजन क्या है वो भी जानेंगे. डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप. ओके, so here it has a fixed shape. Why it has fixed shape? Because it does not, इसके particles जो होते हैं वो तेजी में मूव नहीं करते. और हाँ, एक और चीज, I told you that particles of matter are moving. ठीक है, तो जो सॉलिड्स में होते हैं ना, सॉलिड they don't move, they don't actually move, they vibrate. There is a movement but there is a vibration. That is not the complete movement, that is a vibration of particle is there. In liquid, yes they are moving,
गैसेस दे हैव ट्रुमेंडस स्पीड, स्पीड काफी ज्यादा होता है, बहुत ही तेज मूव करते हैं। इसके कारण जिनका फिक्स्ड शेप होता है, इनके कारण ये मूव कर रहे होते हैं, तो ये जिस शेप में रखे जाते हैं दैट टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर। इफ यू केप देम इन परफ्यूम बॉटल दे विल टेक द शेप ऑफ परफ्यूम बॉटल, इफ यू केप देम इन वाटर बॉटल दे विल केप द शेप ऑफ वाटर बॉटल। गैसेस आल्सो डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप बिकॉज ऑफ देयर हाई काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड और ये, हाँ ये डिफरेंस है, ये तीनों में डिफरेंस है, ये पहले जो लिखवाया वो भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। तीसरा, फिक्स्ड वॉल्यूम, here volume is fixed, here also fixed volume, and here variable volume। ओके, मतलब सब में वॉल्यूम कांस्टेंट, हर चीज में फिक्स्ड वॉल्यूम, यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम, यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल वॉल्यूम। देखो ग्लास में अगर एक पानी को उसको बॉटल में डाल दो, इफ इट इज 10, अगर तुमने 10 मीटर क्यूब पहले लिया था ना, 10 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, इफ यू टुक इट फर्स्ट, बॉटल में भी डालोगे 10 मीटर क्यूब ही मिलेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम यहाँ पे भी होता है, ठीक है, यहाँ पे तो हर चीज यूनिफॉर्म होगा। गैसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। ओके, गैसेस में जिस वो डिपेंड करता है कि कितने गैसेस एंटर करेंगे, ठीक है, इन सब के पहले का रीजन जो है वो क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है, सब बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है सारी चीजें। ठीक है, अब फिक्स शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, देखो डेंसिटी को मैंने रॉ से रिप्रेजेंट किया, रो इज अ ग्रीक लेटर। डेंसिटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, मॉडरेट है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, मॉडरेट है, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या है, डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम है। देखो जितना ज्यादा पार्टिकल नजदीक होते हैं डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि, हाँ एक चीज बहुत अच्छी बात, those people go gym, they have very strong muscles. Why they have strong muscles? The reason is the density of muscles is more in that particular area. But if a normal person, if just touches his hand, he find it more denser. But अगर एक normal इंसान के अगर muscle को touch करें तो that just try to be very fluffy. Okay, so that is the reason why density is more in solids, because they are more denser. Okay, and their particles are very close to each other. और यहाँ पे पार्टिकल काफी दूर होते हैं इसलिए यहाँ पे डेंसिटी मॉडरेट होता है, और यहाँ पे बहुत ही दूर होते हैं इसलिए यहाँ पे डेंसिटी लो होता है। सो दिस इज द fixed shape, fixed volume, density is more, does not have fixed shape, fixed volume, density is moderate. Okay, now the next topic is about the different, yes, और हाँ एक चीज यहाँ पे भूल गया ना, solid. Okay, they are almost not, yes you can write almost, yes, incompressible. इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, देखो कंप्रेस करते हैं किसी चीज को ना, तो उसका जो वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, कम करने लगते हैं, कंप्रेस करते हैं, वी कंप्रेसिबल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, कि किसी भी अगर चीज को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो है काफी नजदीक आने लगते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस कर सकते, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक सिरिंज होता है ना, needle from where we get injection, that needle is very useful, so just take out that needle and just fill a chalk in it, तो रबर कॉक को निकालो, उसके अंदर chalk डालो, compress it, you will not be able to compress because solids are incompressible because of more intermolecular force of attraction. Liquids, yes they are compressible, ये बहुत मतलब आसानी से तो नहीं बट कंप्रेस किया जा सकता है, और ये easily कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, इजिली ही हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, पार्टिकल काफी दूर है, कंप्रेस करोगे काफी ज्यादा नजदीक आ जाएगा। हमारे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है इसका, नेचुरल गैस जो होता है, जो हमारे घर में आता है, वो गैस तो एक्चुअली होता है गैसियस फॉर्म में, बट वो लिक्विड फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेशर अप्लाई से हम लोग कंप्रेस कर देते हैं एंड इट इज इजिली कंप्रेसिबल। ओके, तो यहाँ से ये इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक, और यहाँ पे कंप्रेसिबल होता है, और यहाँ पे इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ सिर्फ पार्टिकल्स का खेल है। ओके,
तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। एंड इफ एनीथिंग लेफ्ट इन दिस टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, okay, and we are about to end this chapter, because from here everything will be easy if you understand intermolecular force of attraction and interparticle space, okay. So we'll meet in the next video with the next topic, okay. Till then, goodbye.